What is up people? Today we are solving a question called as maximum sum sub array. इसके अंदर हम कटीन्स एल्गोरिथम देखेंगे आगे जाके क्या होता है। इसका एक बहुत ही फेमस सोल्यूशन क्लासिक एल्गोरिथम है, काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यार? क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव एन एरे ऑफ इंटीजर्स जो कि बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं, तो उसमें से हमारे को ऐसा सब एरे, सबसे बड़े सम वाले सब एरे का सम रिटर्न करना है। सब एरे इज अ continuous part of this array which has the maximum sum. This sum is what we have to return. Let me take an example and show you. So -2, -1, 6, -1, -2, 4, -8, 3. So if this is my array, the largest sum is this, right? So that would be 10 - 3, 7. We cannot find a better sum out of it. So this is what we want to do. Find the largest sum in any sub array and return that. How do we do that? First way is brute force, right? Brute force. So in brute force, what we are going to do is that we have this array which has all these elements, right? So we have two pointers. One is starting from here and the other one always starts from the next pointer till the last pointer it goes. Keeps on collecting the sums and stores it in a max sum variable, right? So current max sum, then this whole, every sum possible we'll find it out from starting from this and ending at this, right? We'll keep on going ahead. After that we'll move the starting pointer to this, and from this location we'll keep on moving the ending pointer till the last point again to find all the sums that are starting from this location, then this location, then this location, and so on. We understand the whole algorithm. So there are n square such sub arrays, right? N square such sub arrays. So it will be of O of n square time complexity. Can we do something better? Yes. So now let's understand how Kadeen's algorithm works, right? तो यार कडेन्स एल्गोरिथम में क्या कहता है यार? ये कहता है कि यार देखो, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली विल कंसीडर इट इन आवर सब एरे। जैसे ही नेगेटिव नंबर्स आने शुरू करें, क्या हम कंसीडर करें कि ना करें, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो जो भी हमारे पास जो भी सम आया है, इसको हम एक मैक्सिमम सम के अंदर स्टोर कर लेंगे और अपने करंट सम के वेरिएबल के अंदर इस सम के आगे जो भी नेगेटिव भी आ रहे हैं ना, उनको भी जोड़ते हुए चलते हैं। क्यों जोड़ते हुए चलते हैं? कि अगर सपोज करो ये एट दी एंड कुछ पॉजिटिव नंबर ही है अभी भी, एंड इसके आगे से कुछ और पॉजिटिव नंबर्स मुझे मिल जाते हैं, तो इसका जो अपना सम होएगा उससे बेटर ही सम होएगा अगर मैं यहाँ से कुछ पॉजिटिव नंबर लाके इसके अंदर ऐड कर देता, राइट? दिस इज द होल आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम सम में हमने इसका सम तो स्टोर कर ही दिया। हमेशा जब भी करंट सम हम अपडेट करते हैं, अगर वो एक नया बड़ा सम देता है तो हम मैक्सिमम सम के अंदर से डाल देते हैं कि हाँ, अभी तक बेस्ट सम हमारे को ये मिल चुका है। फिर वी कीप ऑन सब्ट्रैक्टिंग वैल्यूज ऑल्सो when the negative numbers come, in hope that after some time, if it is still positive and we find positive numbers after this, then the sum of this can be benefited by adding this whole thing up, right? So if it is, let's say this is 100 and this is -50, right? So this whole becomes 50, and let's say this is equal to 70. Now in this condition, this 70 is a big number, but still if I add this 50 to it, it is much bigger than this thing or this thing, right? So 70 plus 50, which is equal to 120, would be the answer in that case. But there can be the other case also, right? If we have positive numbers over here, maximum sum के अंदर हमने ये डाल दिया था, फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आए, वो मैं करंट सम के अंदर डाल रहा हूँ, एंड एक टाइम के बाद हमारा पूरा का पूरा ये जो नंबर है, जो भी हमारा सम आ रहा है करंट सम के अंदर, ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अब इसके आगे कितने भी पॉजिटिव नंबर्स हो, इसके अंदर ये नेगेटिव नंबर डालने का कोई फायदा नहीं है, राइट? इसका अगर सम 70 था और इसका टोटल सम सपोज करो -1 भी है, चाहे कितना ही छोटा नेगेटिव नंबर हो, उसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, तो इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है यार, ये तो छोटा ही हो रहा है। तो कभी भी नेगेटिव हो जाता है वैसे कि हमने जितना भी करंट सम अभी कंसीडर कर रखा है उस सब को हटा दो, यहाँ से फिर से कंसीडर करना शुरू करो अपना करंट सम एंड इसको 0 कर दो। सो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है। पहले नंबर से अपना करंट सम काउंट करना शुरू करो, पॉजिटिव आ रहा है, बढ़िया चल रहा है, करंट सम बढ़ रहा है, ठीक है, सही है।
तो तुम्हारा यहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं। नेगेटिव आ रहा है, अभी भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जैसे ही पूरा का पूरा सम जो है वो पॉजिटिव की जगह अब नेगेटिव हो जाए, जितना भी अभी तक तुम्हारा बेस्ट सम आया था वो तुमने मैक्सिमम सम के अंदर डाल ही दिया है, इस सारे के सारे सब एरे को खत्म कर दो। इसने पूरे सब एरे का कहीं भी आगे, चाहे आगे पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले, कुछ फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इस टोटल का सम नेगेटिव हो चुका है। अगर इसके नेक्स्ट टर्म भी कुछ पॉजिटिव है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस करंट सम एरे का सम अगर नेगेटिव है मैं इसके अंदर नहीं ऐड करना चाहूंगा, इसलिए हम इस पॉइंट से अपना नया करंट सम शुरू कर देंगे। करंट सम यहाँ पे हम 0 कर देंगे, इसके बाद जो जो एलिमेंट्स आएंगे हम ये काम करेंगे। तो वेरी सिंपल एल्गोरिथम, करंट सम कीप ऑन एडिंग द नया, जो भी नए नए नंबर आ रहे हैं उनको हम ऐड करते जाएंगे। जैसे ही करंट सम नेगेटिव हो जाएगा हम करंट सम को 0 कर देंगे, एंड एट ईच गिवन स्टेप वी आर गोइंग टू अपडेट मैक्सिमम सम। अगर हमारे को करंट सम में कोई और बड़ी वैल्यू मिल रही है, अभी जो मैक्सिमम सम के अंदर हमने स्टोर कर रखी है उससे बड़ी वैल्यू मिल जाती है, देन विल मेक मैक्सिमम सम इक्वल टू करंट सम, कि सबसे बड़ी वैल्यू हम लोग जो है मैक्सिमम सम में स्टोर करा लेंगे एंड विल रिटर्न। इन दिस वे वी कैन डू इट इन O of n. Let me also show you the whole pseudocode over here. This is Python code. And let's take an example, -1, -2, 7, -2, -3, 8, -5, 4. Let's say this is the whole array. ठीक है, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। यार ये पार्ट जो है ये हमारे कडेन्स एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है, दिस इज द वेरिएशन विच इज गिवन ऑन लीड कोड, राइट। कडेन्स एल्गोरिथम क्या कहता है, यार अगर सारे के सारे नेगेटिव टर्म्स है तो इट्स बेटर नॉट टू चूज एनीथिंग, इन दैट केस आवर मैक्सिमम सम विल बी इक्वल टू 0। बट लीड कोड के केस के अंदर हमें ये गिवन है कि हमारे को एटलीस्ट एक सिंगल एलिमेंट तो होना ही चाहिए हमारे आंसर के अंदर। तो हमने सोचा है कि अगर हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है मेरा वही आंसर है, राइट। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी कैन सी दैट मैक्सिमम नंबर हमने जो है इसका फाइंड कर लिया, मैक्स नम के अंदर रख लिया। अगर मैक्सिमम नंबर नेगेटिव है दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर नेगेटिव, so there is no point in finding anything, just return that maximum number in itself. That's what we are doing in this part. The rest of the part is the actual Cadane's algorithm, in which we are assured that there are some positive numbers which we can find, right? So let's see, हमने क्या किया, current sum और maximum sum को initialize कर दिया as zeros, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट आ रहा है हमारे num के अंदर from nums array, and we keep on adding it into the current sum. We check it with max sum. If it is bigger than the max sum, we update the max sum. If current sum is less than 0, we reset it to 0. ठीक है, तो इसको एक बार यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे सम था हमारे पास 0, -1 आया, current sum plus -1, this becomes -1. So now since max sum is greater than current sum, we'll not update it. Current sum now is less than 0, so it will again be 0. The same thing will happen with -2 also. It will become -2, max sum will not be updated, it will become 0 again. Now 7 comes, we add 7 to it and say that okay, now it has become 7. So 7 now, because it is greater than the max sum, current max sum that we have in this variable, we are going to update it as 7, right, with the current sum in this statement. We can see that, right? Now -2 comes, it is positive in case of current sum being 7, so हमने ये वाला स्टेप नहीं किया उसमें। फिर -2 आया, -2 ने इसको 7 - 2 5 बना दिया। अभी भी ये पॉजिटिव है बट मैक्स सम से छोटा हो गया, तो अपडेट नहीं होएगा बट 0 भी नहीं होएगा, अभी भी हम यहीं से एरे को अपना कंसीडर कर रहे हैं। देन एक और नंबर आया हमारे पास -3, अब -3 इसके अंदर हमने डाला तो हमारे पास बन गया 2, अभी भी पॉजिटिव है, मैक्सिमम से छोटा है, मैक्सिमम अपडेट नहीं होएगा, ये 2 बन गया, राइट। उसके बाद आया 8, तो 2 + 8 = 10। जैसे ही ये 10 हमारे पास आया, हमने कहा कि यार दिस इज नाउ अगेन ग्रेटर देन द करंट मैक्सिमम, जस्ट अपडेट इट विद द करंट सम, so this becomes 10. Now we have 10, -5 comes, this becomes 5. Now current sum is 5 and max sum is 10, so 5 is less, so we will not update. Then +4, if it comes, we see that okay, now since this becomes 9 and my max sum is still greater than this, we don't have to update it. In this whole part we can understand
कि हमारा अभी जो करंट सम चल रहा है उसके अंदर हम इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं, इतने तक पहुंच गए, और हमारा करंट सम हमारा कहाँ तक पहुंचा है इस टाइम पे 9, पर हमें पता है कि इसके अंदर एक छोटा सब एरे है जिसका मैक्सिमम हमारे पास 10 था, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया था। तो ये जो मैक्सिमम है हम इसको रिटर्न करेंगे, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम सम सब एरे। इट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन, सो अच्छे से इसको समझ लो। इसको समझने के बाद 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। O of n का इसका सोल्यूशन है। I'll be posting more questions on this platform. Do comment if you have other suggestions or some recommendations, some requests. If you want me to pick up some other question, do let me know. I'll pick them up as soon as possible. Thank you everyone. Bye bye.